delegate, representative, emaciated, weakened यानी कमजोर करना या हो जाना, then resolute, determined, com- complied, acted in accordance with request or command, request या command को accept करना, conferred, consulted, made a decision or bestowed, grievance, cause for complaint, dissatisfaction यानी शिकायत का कारण या फिर असंतोष, vehement, very emotional or strong and forceful, defender is protector, filthy means very dirty, trench, a long, narrow and usually deep ditch or कम चौड़ा गड्ढा. Right, true or false? Question number one, sorry, sentence number one. Rajkumar Shukla was a landlord. False. Gandhiji went to Champaran on his own to begin the civil disobedience movement. False. All the peasants of Champaran agreed to sign a contract with the British landlords for compensation. False. Gandhiji did not want to meet Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad. False. Gandhiji was a lawyer, so he did not scold the lawyers for charging heavy fee from poor peasants. False. Number 6. Gandhiji helped the poor peasants in their upliftment by making them aware about education, hygiene, fundamental rights, and self-reliance. True. Champaran was Gandhiji's Waterloo. True. Then answer in 22, 30 words each. Question number 1. Why did Rajkumar Shukla approach Gandhiji? Rajkumar Shukla was a sharecropper from Champaran, Bihar, and he came to the Congress session to complain about the worst condition of the sharecroppers there. They were being exploited by the Britishers as according to the contract between the British landlords and the tenants, that 15% of their holdings with indigo would be planted with indigo and they'll have to surrender the entire harvest as rent. So he came to Gandhi to complain about the worst condition of the sharecroppers. What were the terms of contract between British landlords and peasants? The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their land holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was the long-term contract between British landlords and the peasants. Why did Gandhiji not agree to proceed to Champaran with Rajkumar Shukla immediately? क्योंकि स्टार्टिंग में गांधी जी ने सोचा था कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी और थोड़े बहुत दिनों में वो उसको सॉल्व करके आ जाएंगे. और सेकेंडली ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट प्लेस. इवन पहले कभी उसके बारे में उन्होंने सुना नहीं था, वहां गए नहीं थे, तो ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स देयर. दैट इज व्हाई. एंड सेकेंडली ही हैड सम अदर असाइनमेंट्स जिनको उन्हें पूरा करना था.
कुछ और उनके अपॉइंटमेंट्स थे जहां उनको जाना था. That is why he immediately did not go with Rajkumar Shukla. Question number 4. What happened when Gandhiji and Rajkumar Shukla wanted to meet Rajendra Prasad? So when they went there, Rajendra Prasad was out of the town and the servants जो वहां थे उन लोगों को वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर peasant who generally came there for the help. अक्सर वो हेल्प मांगने राजकुमार शुक्ला वहां जाया करता था फॉर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो गांधी को भी उन्होंने उसी का साथी peasant समझा, इसलिए उन दोनों को बाहर बिठा दिया. And even Gandhi was not permitted to draw water from the well, as they thought him to be untouchable. Question number 5. Why did Gandhiji plan to go to Muzaffarpur? Gandhiji planned to go first to Muzaffarpur to obtain more and complete information about the conditions of the sharecroppers. And secondly, Professor Kriplani and Professor Malkani were there, and he wanted to gather some information from them. So he decided to go to Muzaffarpur. Question number 6. What was the synthetic indigo on natural indigo crop? When synthetic indigo was developed in Germany, so the natural indigo crop was not required. That is why the British landlords asked the tenants to pay some compensation and get released from the 15% arrangement. अब उनको इस इंडिगो क्रॉप की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन टेनेंट्स को कहा कि कुछ कंपनसेशन दे करके वो अपने आप को इस 15% अरेंजमेंट से फ्री करवा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. How did British landlords compel poor peasants? British landlords compelled the poor peasants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. And secondly, when they got received the information of the synthetic indigo had been developed in Germany, they obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. Question number 8. Why did Gandhiji scold the lawyers? Gandhiji scolded the lawyers for charging heavy fee from poor peasants. Because already they were in a very poor condition, and to represent their court cases, they were charging very heavy fee from the poor peasants. Question number 9. How did the Champaran episode prove to be a turning point in the political career of Gandhi? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड. So let me explain it
nicely to you. Champaran episode proved to be a turning point in the political career of Gandhiji because Gandhiji उस वक्त 1915 में इंडिया आए थे और he had proved himself in South Africa जहां अपार्थाइड की पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया था एंड he won there, वहां पर वो जीत गए थे। यहाँ पर अभी तक गांधी की कोई एक प्रोमिनेंट पहचान नहीं बनी थी ऑल ओवर इंडिया। तो एंड सेकेंडली चंपारण में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट और पुअर पीजेंट्स के बीच में था, जो कि सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। बट और शुरू में गांधी जी को लगता भी है व्हेन ही डिसओबेड द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला था कि ये जगह इमीडिएटली छोड़कर जाना है, बट ही रिफ्यूज टू डू सो। ही स्टेड देयर एंड ही वाज अफ्रेड दैट ही वुड बी सेंट टू जेल, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। बट विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द वायलेंस, विदाउट एनी एजिटेशन, कोई भी धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह की एक्टिविटी किए बिना गांधी जी ने एकता के बल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और एक तरह से उनकी जीत हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हार गए थे। तो दिस वाज अ बिग विक्ट्री एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रायम्फ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन द मॉडर्न इंडिया। उस वक्त पहली बार सिविल डिसोबीडियंस यानी कि जो कानून है उसको नहीं मानना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करना, तो दिस इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। पहली बार इस चीज की जीत हुई थी क्योंकि गांधी जी ने उस ऑर्डर को नहीं माना, फिर भी गांधी जी के खिलाफ वो लोग कुछ नहीं कर पाए और फाइनली द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड टू एग्री टू रिफंड द मनी, पैसा भी उनको वापस देना पड़ा और फाइनली जो किसानों की जमीन थी वो भी उनको मिल गई। तो दिस वाज अ बिग विक्ट्री और यहीं से एक तरह से शुरुआत हो गई थी दैट अगर इंडियंस एक हो जाएं, इफ द इंडियंस आर यूनाइटेड, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो it gave a new momentum to the freedom struggle which was going on. That is why this episode proved to be a turning point in the political career of Gandhi. Question number 10. What did Gandhiji do for social upliftment of the poor families of peasants? उसके लिए उन्होंने जो टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनको इंसिस्ट किया वहां आकर के अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो महादेव देसाई, नरहरि पारिक वर द टीचर्स टू यंग मैन, उन्होंने आकर के अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी सर्विसेज दी और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। कस्तूरबा गांधी उनको आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में उनको अवेयर किया एंड he helped the poor peasants in their upliftment by making them aware about education, hygiene, fundamental rights and self-reliance। और हेल्थ कंडीशंस भी उनकी मिजरेबल थी, तो डॉक्टर्स को भी अपनी सर्विसेज देने के लिए कहा गया, जिन्होंने आकर के उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई। देन जो उनकी हाइजीन और क्लीनलीनेस है उसके बारे में उनको अवेयर किया गया। तो इन दैट वे Gandhi did a lot for social upliftment of the poor families of peasants. He made them self-aware, self-reliant, and self-confident. Question number
डिटेल आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण, तो पूरा आ जाएगा। सबसे पहले डिटेल आंसर है और ये बोर्ड में एटलीस्ट 7 मार्क्स का होता है, so you have to write the complete answer there। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करो। सबसे पहले गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ वहां गए, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ही मेट द लॉयर्स देयर, सबसे पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, सबूत थे, वो सब कलेक्ट किए गए। और उसके बाद ही कंसल्टेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सेंट द होल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। फाइनली सारे सबूत, सारे एविडेंस जो थे वो बिग प्लांटर्स के जो एस्टेट्स के मालिक थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उनके अगेंस्ट थे। So they had to agree to make refunds to the peasants. In this way, and finally, within a few years, the British planters abandoned their estates and the peasants got their lands, and indigo sharecropping was disappeared. तो पूरा आंसर आपको लिखना है कि सबसे पहले गांधी जी वहां गए, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो लॉयर्स थे उनसे मिले, जो लोकल रेजिडेंट्स थे उन लोगों से उन्होंने बात की, सारी इंक्वायरी की, पूरे नोट डाउन किए जो सारे ग्रीवेंसेस थे उनके फार्मर्स के, पूरे एविडेंसेस, पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। उसके बाद गांधी जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडवर्ड गिफ्ट, उससे मिले। 4 इंटरव्यूज, 4 मीटिंग्स उनकी हुई उसके साथ। देन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी को सेटअप किया गया, जिसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और जब देखा गया कि सारे जो एविडेंसेस हैं वो उन लोगों के खिलाफ है, लैंडलॉर्ड्स के, तो उनको एग्री करना पड़ा कि वो पैसा वापस देंगे। In this way, Gandhiji solved the problems of the peasants. Question number 2. Explain in your own words how Rajkumar Shukla convinced Gandhiji to proceed to Champaran. So Rajkumar Shukla met Gandhiji in Lucknow. उसके बाद उसने उनको सारी प्रॉब्लम बताई। देन गांधी टोल्ड कि उनके और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो जहां जहां भी गांधी जी गए वो उनके साथ गया। शुक्ला accompanied him everywhere, and when Gandhi returned to his ashram, शुक्ला again followed him to the ashram। तो कई हफ्तों तक वो उनके साथ बना रहा, बिल्कुल उनको प्रेशराइज करता रहा that he has to go with him to Champaran। Finally, he asked him to fix a date, और फिर गांधी जी को कहना पड़ा कि कलकत्ता में जब वो आएंगे तो वहां से राजकुमार शुक्ला के साथ वो चंपारण के लिए प्रोसीड करेंगे। कई महीने निकल गए, लेकिन शुक्ला जो था वो वेट करता रहा, और जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तब भी वो इनको वहां इंतजार करता हुआ मिला। एंड फाइनली गांधी हैड टू प्रोसीड टू चंपारण। Question number 3. Why did Gandhiji decide to consult Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad? So, Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad were prominent leaders at the time.
Dr. Rajendra Prasad was a lawyer and Professor Malkani was working in the British school, in a government school. And they both were prominent personalities of that place, जिनमें इतना साहस था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हुए भी अपने लोगों के लिए कुछ कर सके. That is why Gandhiji decided to consult Professor Malkani and Dr. Rajendra Prasad so that he could get all the information regarding the grievances of the sharecroppers. Question number 4. What were the old terms and conditions of the contract between the British landlords and the peasants? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो वही थे. They were compelled to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. And this was done by a long-term contract. Question number 5. What was the impact of the Champaran episode on the peasants and the British government? तो चंपारण एपिसोड का असर पीजेंट्स पर ये पड़ा कि they became aware of their rights, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में उनको पता चल गया. उनको ये भी पता चल गया कि somebody is there to defend them, उनके लिए भी कोई बोलने वाला है. और बिना कोर्ट केस के, बिना फीस दिए कोर्ट केसेस की उन जो पीजेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनको अपना अधिकार मिल गया था सिर्फ गांधी की लीडरशिप और उनकी यूनिटी की, अपनी खुद की यूनिटी की वजह से. और उन्होंने ये भी देख लिया था कि अगर वो एक हो जाएं, अगर वो यूनाइटेड होकर के काम कर रहे हैं तो दे कैन विन एनी बैटल. सेकेंडली, जो उनकी सोशल कंडीशंस थी वो भी इम्प्रूव हुई, उनके अंदर आत्मविश्वास आया. दे बिकेम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट. उनके मन में जो डर था ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के प्रति, वो सारा निकल गया. एंड दे बिकेम courageous, self-confident and self-reliant. And on the other hand, the British government को भी ये एहसास हो गया कि अगर इंडियंस एक हो जाते हैं, यूनाइटेड हैं, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि गांधी जी को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां हजारों की संख्या में जो हजारों पीजेंट्स जो वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उस भीड़ को कंट्रोल करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था. फॉर दैट ऑल्सो उनको गांधी की ही हेल्प लेनी पड़ी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया एंड जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया गया. गांधी को कोई सजा नहीं दी गई, उनका ट्रायल भी कोर्ट में नहीं लिया गया, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि गांधी के साथ बहुत सारे लोग हैं और अगर गांधी को कुछ भी हुआ तो जो स्थिति होगी उसको संभालना इम्पॉसिबल होगा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी ताकत का एहसास हो गया था कि वो क्या कर सकती है और कितना कर सकती है, और पीजेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का एहसास हो गया था. So this was the impact of Champaran episode on the peasants and the British government. Then you have to do B and C in your notebook and this activity 3 and activity 4 भी करनी है, ताकि जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो भी साथ में चलता रहे. तो एक्टिविटी 3 में है स्पीच एक्टिविटी. क्वेश्चन 1. ड्राफ्ट अ स्पीच ऑन नॉन वायलेंस एज अ पोटेंट वेपन फॉर वर्ल्ड पीस. तो नॉन वायलेंस के ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी है, शॉर्ट स्पीच, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल फ्रॉम दिस लेसन कि किस तरह से गांधी जी ने बिना हथियार उठाए
बिना वायलेंस का सहारा लिए, बिना कोई एजिटेशन किए, बिना कुछ धरने प्रदर्शन, नथिंग ही डिड, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानों को उनका अधिकार दिला दिया, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवेंसेस थे, उनसे उनको छुटकारा दिला दिया। तो एंड he had done the same in South Africa also. तो बिना वायलेंस के भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाए तो दुनिया में शांति बनी रहेगी, हथियारों की जरूरत भी नहीं होगी। तो यू हैव टू राइट दिस स्पीच, एंड सेकंड वन इज prepare a speech for your prayer assembly on the role of the revolutionary leaders of the Indian freedom struggle. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रिवॉल्यूशनरी लीडर्स का क्या रोल था, उसमें आप एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, whatever you want. गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, किसी का भी आप एग्जांपल लेकर के, एंड यू हैव टू राइट व्हाट वाज द रोल ऑफ दीज लीडर्स. Then activity 4, write a letter to the editor of the Indian Express about the exploitation of indigo farmers at the hands of the English landlords on the basis of this lesson. तो इस लेसन से के बेस पर, यानी कि आपको एक शेयर क्रॉपर की तरफ से ये लेटर लिखना है टू द एडिटर, किस तरह से जो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फार्मर्स का, और then you will have to mention the long term contract between the peasants and the British landlords, और क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, एंड फाइनली जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई तो उनसे कंपनसेशन मांगा गया, उनको इस एग्रीमेंट से फ्री करने के लिए, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी. तो you have to do B, C, activity 3 and activity 4 in your notebook. Is that clear? Anything you want to ask? कुछ पूछना है आपको?